My name is Yogendra Kumar, lecturer from Department of Mechanical Engineering, University Polytechnic, GLA University, Mathura. Students, are today we are going to discuss about classification of sunk key. Okay, so how can we classify the types of key and how can we classify the sunk key? So you know that the sunk key means a key which is inserted between the half portion of key in hub and half portion of key in shaft. Okay, like this. If we are using a shaft, that is a shaft, and that is a hub, and we want to prevent the motion of shaft and hub by using a key, then we have to use a key in the half portion of key which will be inserted into hub and half portion of key will be inserted into shaft. Okay, like this. That is shaft, that is hub, and that is the key. So, classification of sunk key is, so first of all, it is classified into various types of categories. Number one is rectangular sunk key. Number two is square sunk key. Number three is jib head sunk key. Number four is feather sunk key. Or also known as feather key. F-E-A-T-H-E-R, feather key. Okay, so there are various classifications of types of key or types of sunk key. ये जो हम जो sunk key यूज करते हैं वो लगभग इतने टाइप की sunk key आपकी होती है. ठीक है, एक और होती है जो आपकी स्पेशल टाइप में आती है, that is known as Woodruff key. जी. So first of all, we are going to describe about the rectangular type sunk key. Actually, sunk key, you know that what do you mean by sunk key? Sunk key, the key which is used the half portion of hub and half portion in the key in shaft. So basically, when we are talking about the rectangular sunk key, it means the cross section of key. The cross section of key will be rectangular. Okay, will be rectangular like this. This is a key. This is a key. Okay, तो ये ऐसी हमारी रेक्टेंगुलर की हो सकती है जिसमें आपका जो क्रॉस सेक्शन है की का वो कैसा रहेगा, रेक्टेंगुलर शेप का रहेगा. ओके, लाइक दिस. This is weight noted by W. This is thickness noted by T. And this is the length of key L. So according to industrial norms के यदि हम बात करें कि इसके शेप और साइज की कि इसका L, T and W की जो वैल्यू होंगी according to the diameter of shaft, it can be found out with the help of some standard ratio like this. W of key will be equal to D by 4. T will be equal to D by 6. And L will be equal to 1.52. So these are the standards where we can easily find out the value of key dimensions L, W and T. Okay, ये आपको शायद दिखाई दे रहा हो clearly. And
So rectangular key, there are two types of rectangular key may be used. Number one is parallel type, parallel, and number two is taper. तो टेपर रेक्टेंगुलर की हो सकता है आपका, पैरेलल रेक्टेंगुलर की हो सकता है आपका। तो पैरेलल की बात यदि हम कर रहे हैं तो पैरेलल का मतलब है the size of key will not change according to their length. It means the thickness will be same at the first point to the last point. जितना थिकनेस आपका यहाँ है उतना ही थिकनेस आपका यहाँ रहेगा। It means such type of key there is no change in thickness, no change in thickness, no change in thickness. Then such type of key is known as parallel key, parallel rectangular sun key. Okay, we are talking about the taper type sun key, a taper type rectangular sun key. It means the taper means the size of thickness will change according to their length, so it will be in the ratio 1/100. 1/100 का इसमें यदि रेशियो लगता है इसके थिकनेस के चेंज में, तो आपका जो की होगा वो कहलाएगा टेपर रेक्टेंगुलर संक की। ओके, नेक्स्ट वन इज स्क्वायर संक की। स्क्वायर संक की मींस द सेक्शन, द क्रॉस सेक्शन ऑफ की विल बी स्क्वायर, द क्रॉस सेक्शन ऑफ की विल बी स्क्वायर लाइक दिस। इट मींस थिकनेस T will be equal to the width of key. Okay, the thickness और आपका width दोनों सेम है की का, so such type of key is known as square sunk key. Again, there are two types of sunk key. There are two types of square sunk key are used. It may be parallel or it may be tapered. Okay, it may be tapered. टेपर कर सकते हैं, टेपर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट मे बी टेपर्ड। तो यदि वही पैरेलल है तो आपका थिकनेस का कोई चेंज नहीं होगा, और यदि उस पर टेपर है तो 1/100 का हम लोग टेपर इस पे यूज करते हैं अगेन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ विड्थ और t का जो वैल्यू होगा इट विल बी इक्वल टू w इक्वल टू t इक्वल टू d/4, एंड यू नो दैट d मींस डायमीटर ऑफ शाफ्ट, डाया ऑफ शाफ्ट। ओके, नेक्स्ट आपको आता है जिब हेड की। सो जिब हेड की जनरली a key which is used in a shaft and hub assembly for easily remove or easily inserted. तो यदि हमें इसे easily remove करना है और easily insert करना है किसी भी हब और शाफ्ट असेंबली में, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा पैरेलल की है, ये रेक्टेंगुलर टाइप पैरेलल की जो होता है, इस की में हम लोग एक हेड क्रिएट कर देते हैं। बस क्या करते हैं, वी आर यूजिंग अ हेड ऑन अ पैरेलल रेक्टेंगुलर टाइप की और अ पैरेलल स्क्वायर टाइप की। इट मे बी डिपेंड्स अपॉन दिस द यूज कि आप कौन सा यूज कर रहे हैं, मगर उसमें यदि हमने हेड लगा दिया तो वो आपका क्या कहलाएगा, एक जिब हेड की का नाम उसका हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो जिब हेड की हमारा, so according to the diagram we can see जिब हेड की हमारा कैसा होगा, like this we have a key of rectangular shape like this। तो अब इस पे हम जो हेड को इंडिकेट कर दे, थोड़ा इस हेड को हम थोड़ा हाइट दे देंगे। ठीक है, ये हाइट हम देंगे 1.5 t के अकॉर्डिंग, t के इक्वल 1.5 t के इक्वल इसको हाइट देंगे। उसके बाद यहां से इसे 45 डिग्री के ऊपर टिल्ट करा देंगे। ठीक है, और इसका टोटल हाइट जो रखेंगे वो रखेंगे 1.75 t, 1.75 t, और उसके बाद इसको ऐसे करके मैच करा देंगे। तो ये आपका जो की बनेगा, ये जो की बन रहा है, ठीक है, ये जो की बन रहा है, such type of key is known as jib head key। So that portion
यहाँ जो एंगल मैंने लिया 45 डिग्री का लिया हुआ है, 45 डिग्री एंगल है आपका ये। दैट पोर्शन इज नोन एज जिब हेड, जिब हेड, जिब हेड। ओके, एंड फर्स्ट टाइप ऑफ की इज नोन एज जिब हेड की। तो ये आपका यूज करते हैं जहां हमें इजीली अपने शाफ्ट और हब के असेंबली में की को लगाना हो और निकालना हो, तो उसके लिए हम थोड़ा हेड क्रिएट करते हैं। दैट हेड इज नोन एज जिब हेड। अगेन ये यहाँ पर टेपर की ही होती है, ठीक है, इसमें टेपर होता है 1/100। डोंट फॉरगेट इट, ये नहीं भूलना है आपको कि इसमें जो टेपर रहेगा वो 1/100 का ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट आपका आता है फीदर की। फीदर की एक्चुअली किसी भी असेंबली में जहां हमें शाफ्ट और हब का असेंबली यूज करना हो, ये इसलिए यूज की जाती है ताकि आपका जो रिलेटिव एक्सियल मोशन है वो हम लोग कर सकें, ठीक है। ये आपका एक तरीके से जो की होती है वो पैरेलल की होती है, और पैरेलल की होने के साथ साथ इनको हम इस तरीके से माउंट करते हैं कि हमारा आपके शाफ्ट और हब के बीच में एक्सियल मोशन हो सके, एक्सियल मूवमेंट हो सके, ठीक है। और दूसरा हो सकता है कि हम उसमें एक्सियल मूवमेंट को रोक सके। तो दोनों तरीके की यूज होती हैं। तो पहली जो की होती है, ठीक है, पहली वाली जो की होती है ये स्पेशल टाइप की होती है, पैरेलल की होती है, which transmit a turning movement, also permit axial movement, ठीक है। तो ये आपका टर्निंग मूवमेंट के साथ साथ एक्सियल मूवमेंट भी प्रोवाइड कराने के लिए यूज किया सकती है। इसका हम लोग डायग्राम से समझेंगे कि ये कैसी होती है, ठीक है। So there are two types of figure of feeder key. In figure number A, you can see the hub can move in axial direction. So it means it permits the axial movement. And second one, here we can transfer the torque by using the hub and shaft assembly, but it cannot provide the axial movement on the hub. So here we are using a screw to mount the key on the hub, on the shaft, and here we are using a jib head to mount the key on shaft. तो जब हम यदि की के साथ हम उसमें हेड यूज कर रहे हैं, जिब हेड यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम टॉर्क ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें एक्सियल मूवमेंट हब का नहीं हो पाएगा। यदि हमने पैरेलल की यूज कर रखी है और उसको की को हमने माउंट कर रखा है बाय मींस ऑफ स्क्रू ऑन द शाफ्ट, तो हमारा जो शाफ्ट वाला पोर्शन है उस पर हमारा जो हब है वो आराम से एक्सियल मूवमेंट कर पाएगा। ये हमारा हब होगा, ठीक है। लास्ट में हमारा आता है क्लासिफिकेशन में वुडरफ की। ओके, सो वुडरफ की इज अ स्पेशल टाइप ऑफ की व्हिच इज इजीली एडजस्टेबल इन द कीवे और द की सीट, ठीक है। किसी भी कीवे में और किसी भी की सीट में इजीली उसे आराम से आप चाहो तो किसी भी शेप किसी भी जगह पर प्लेस कर सकते हो। तो ये जो की होता है वो आपका सेमी सर्कुलर पोर्शन का की बना होता है। एक सेमी सर्कुलर आपका टाइप का की होता है लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके का की होता है आपका, जो कि एक कीवे में, एक शाफ्ट के कीवे में, ये आपका शाफ्ट हो गया, इस शाफ्ट के कीवे में इजीली एडजस्ट हो सकता है। तो एडजस्टेबल स्पेशल टाइप की होता है ये। तो जो हब का साइज है उसके अकॉर्डिंग से कहीं भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर पोर्शन, सेमी सर्कुलर की टाइप भी आपका ये की होता है। सो दैट द प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ संक की। हम इससे की का जो क्लासिफाइड कर सकते हैं संक की को वो समझ चुके हैं, और कितने टाइप की क्लास आपकी जो संक की होती है वो यूज करते हैं वो यहाँ समझ चुके हैं, ठीक है। अब जनरली जो हम डिजाइन की बात करेंगे, तो डिजाइन ऑफ संक की हम बात करेंगे तो हम उसमें हमेशा रेक्टेंगुलर की के डिजाइन के लिए बात करते हैं। ओके, तो हम अभी नेक्स्ट अपना लेक्चर में डिजाइन ऑफ की बात करेंगे, तो डिजाइन ऑफ की में हम लोग डिजाइन ऑफ संक की के लिए बात करेंगे।
and how can we find out the value of width and thickness and length by using the some numerical formulae, and how can we चेक द स्ट्रेंथ ऑफ की, ठीक है, तो हम कैसे की स्ट्रेंथ चेक कर पाएंगे, तो वो भी हम यहाँ देख लेंगे, ठीक है, और उसके शेप और साइज, उसकी डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे वो भी हम लोग यहाँ देख लेंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा हमारे पास कि हम पे जो हमने की यूज कर रखा है उस की में कितने टाइप के स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में और अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू।